श्रीमान चोबा सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव कबीर गांव जी, श्रीमान पद्मनाभ आचार्य जी, श्री एम भरत सिंह जी, श्री प्रेमानंद शर्मा जी, कुमार शर्मा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, brothers and sisters of Manipur, I feel lucky to be in the Northeast. I salute this soil. I salute the people of this soil. I salute the culture of Manipur. Indian culture is not complete without Manipur dance. Similarly, when talk of sports in India, it is Manipur state which gives the most. Similarly, a large number of boys and girls of Manipur are in the army. Thus, Manipur gives lot of color, courage and vibrancy to Indian life. Manipur adds to the diversity of India. Its ecosystem adds richly to the biodiversities of our country. Moreover, in Indian mythology, it is believed that the northeast of a house is a pious place. जो लोग वास्तु पूजा में विश्वास करते हैं, वो ये मानते हैं कि घर के अंदर जो ईशान कोना होता है, वो सबसे केयर करनी चाहिए। घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है हाउस का, उसका मैक्सिमम केयर करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं। It is also said that if you want peace, progress and prosperity, take care of the northeastern part of the house. ईशान कोण की चिंता करो। भारत जैसे विशाल देश में भी अगर वास्तुशास्त्र के रूप में देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट भर का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। Unfortunately, after independence, the policies of the central government have not been properly aligned for the development of this region. For the first time, Atal Bihari Vajpayee, during the ND rule, paid attention for organized development of the Northeast in 2001. He made a separate Ministry of Development of the Northeastern region
इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सबको मालूम है अटल जी ने पहली बार इस हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अलग व्यवस्था खड़ी की, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई। He also gave a special package for economic development of Northeast. He made it mandatory for all departments of the central government to spend 10% of their budget for the Northeast region. आप कल्पना कर सकते हैं, ये अटल जी में हिम्मत थी कि उन्होंने फैसला किया कि जब तक सभी विभाग अपने बजट का 10% हिस्सा इस क्षेत्र के लिए खर्च नहीं करेंगे, तब तक यहां प्रगति नहीं होगी। इतना महत्वपूर्ण निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस इलाके के लोगों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने किया था। He had also made a 20-point program for economic development of this region. और उन 28 प्रोग्राम उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भारत सरकार करती थी और ये देखा जाता था कि कितना जल्द निर्धारित काम पूरे हो। नॉर्थ ईस्ट has its own strength for economic development. Its biodiversity has some of the most valuable hubs. A huge business based on medicinal plants can be developed. Even its bamboo and the craft of making bamboo products can become a huge global business. भाइयों बहनों, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैन डू facelift of the Northeast. Oil and gas reserves of this region and the mineral wealth have to be harnessed in a systematic way. Similarly, the Northeast is a tourist paradise. It can be developed in a big way to attract the domestic and foreign tourists. All this can be easily done for development of this region and for benefit of the entire nation. गुजरात की और आपके इलाके का हमारा बड़ा संबंध ज्यादा है। गुजरात में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं। लेकिन गुजरात ने गैस बेस्ड इकोनॉमी का बीड़ा उठाया, उसी भू संपदा से विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया। लेकिन क्या कारण है कि इतने गैस और तेल के भंडार हमारे इस भूभाग में होने के बावजूद भी हम यहां पर आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? वो पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो पॉलिटिकल विल नहीं है और न ही यहां के नौजवानों के भविष्य की चिंता है। और उसी के कारण इतना सारा होने के बाद भी आज भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र हम देख रहे हैं। भाइयों बहनों, however, due to lack of attention, due to lack of infrastructure, this region is suffering. Moreover, this region has been allowed go under impression that they are not a part of mainstream Indian life. Incidents like what happened in Delhi a few days back are further alienating the Northeast. Beating a recent death of Nido
Sanyam of Arunachal Pradesh, right in the national capital, is a national shame. भाइयों बहनों, I am before you with a lot of conviction and commitment to do something. I am before you with the promise that I will take that process forward which Atal Bihari Vajpayee ji has started. I promise you to bring this region at par with other regions of India. The 8 northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim. भाइयों बहनों, हम अब तक 7 सिस्टर्स की बात करते थे, 7 राज्यों की चर्चा करते थे। अब सिक्किम को जोड़ने के कारण 8 राज्यों का समूह बना है। पहले हम 7 सिस्टर्स की बात करते थे। मैं आज कहना चाहता हूं, ये भारत के भाग्य को बदलने वाली अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी। ये 8 राज्य अष्टलक्ष्मी, with this bright human resource, with its immense natural wealth, and with its spirit to fight against all odds, the Northeast can be a strong player in the economic profile of India. The Northeast, sitting on Kamal, will be India's Ashtalakshmi. हम सबको मालूम है, लक्ष्मी कमल पे विराजती है, और अगर लक्ष्मी कमल पे विराजती है तो यहां के नागरिकों को तय करना होगा इन अष्टलक्ष्मी को भी कमल से सुशोभित करनी होगी, ताकि ये अष्टलक्ष्मी हिंदुस्तान के भाग्य को भी बदलने की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आए। Because of lack of attention and lack of governance, the Northeast region has fallen into the hands of divisive forces. When the boundary of your house becomes big, people make roads to walk through. Extremism, insurgency, and infiltration are the biggest current problem of this region. Our land is not safe. The life of our people is not safe. Manipur too has similar problems as the rest of the Northeast. In addition, Manipur has seen some of the worst government of Congress. Drug trafficking is another major problem. The only solution with the Congress-led central government and the state government knows about the problem of insurgency is to do fake encounters. Even pregnant women have been killed in encounters. They do not know the such steps will further spoil the atmosphere. Drug consumption is a big problem in Manipur. The youth are especially vulnerable, driven to drugs by lack of educational and employment opportunities. The Congress-led state government has failed in stopping drug trafficking from across the border. Some leaders are even accused of being complicit.
Like the UPA government and Congress in Delhi, the Congress government in Imphal has also broken all records in corruption. There is corruption in giving small jobs to ordinary people. A multi-crore scam has happened in Loktak Lake cleaning. Over 200 crores rupees are said have been siphoned off. This scam is parallel to the Ganga cleaning project of Government of India. भाइयों बहनों, ये गए थे तालाब की सफाई करने के लिए, लेकिन हाथ की सफाई कर दी। इनको तालाब की सफाई में इंटरेस्ट नहीं है, इनको हाथ की सफाई करने में इंटरेस्ट है। और ये पंजा ऐसा है कि मौका पड़ते ही हाथ लगा देता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपका ये तालाब कितने विकास की संभावनाएं पड़ी है, टूरिज्म का कितना बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है, यहां के पूरे जीवन का वो एक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है, लेकिन उनको सोचते नहीं है। When BJP government comes to power, we will ask for account of every rupee. और हम तभी तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर ब्लैक मनी गया है ना, वो एक एक पाई हम वापस लाने वाले हैं। और ये ब्लैक मनी किसका है, सबको मालूम है ना किसका है। ये विदेशों में रुपये किसके हैं भाइयों, जरा जोर से बोलिए किसके हैं। भाइयों बहनों, Loktak Lake enjoys rich flora and fauna. It is the only habitat of Shanghai deer. It can be developed as a prominent tourist spot. You must be aware that the Prime Minister of India represents this region in Rajya Sabha. Everyone knows that he has not done anything for Northeast. But to show some work, the Chief Minister of Manipur has made him and other senior leaders of Congress come to inaugurate projects. This often remains incomplete. ये आते हैं या पत्थर डाल के जाते हैं या रिबन काट के जाते हैं, बाद में बंद हो जाता है, फोटो निकल जाती है। भाइयों बहनों, मैं रीजन के लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने 60 साल कांग्रेस को दिया, 60 साल। आपका भला हुआ क्या? जरा जोर से बोलो, भला हुआ? जरा दूर से आवाज आनी चाहिए, भला हुआ? भाइयों बहनों, आपके 60 साल बर्बाद हो गए, मुझे 60 महीने दे करके देख लो। 23 साल से भारत के प्रधानमंत्री यहां से चुन करके जाते हैं, राज्यसभा से, नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। 23 साल हो गए। भाइयों बहनों, अरे दुनिया बदलने के लिए 5 साल काफी होता है। 23 साल हो गए, यहां की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बागडोर देने की? क्या जरूरत है बार बार उनको सत्ता में बिठाने की? और इसलिए मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों, विशेष करके मणिपुर के भाइयों बहनों, अब ब्रह्मपुत्रा में पानी बहुत बह चुका है। हम कब तक इन लोगों को झेलेंगे? कब तक हमारे नौजवान बेरोजगार रहेंगे? कब तक हमारी मां बहनों की इज्जत लूटती चली जाएगी? कब तक हम इस पिछड़ी जिंदगी गुजारते रहेंगे?
भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। विकास में हर एक को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार से आप कुछ नहीं पा सकते हैं। आज तो देश की हालत ऐसे है, न नेता है, न नीति है और न नीयत है। द यूपीए एट द सेंटर and the Congress government here have also played with the issues of national security. Lot of boundary pillars are missing on the border with Myanmar. आप भली भांति जानते हैं, दे रहे हैं, अड़ोस पड़ोस जो मांगे ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर चाइना, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, लूटो, कौन पूछने वाला है? क्या कोई देश ऐसे चल सकता है भाई? नहीं, आपके घर की कोई चीज ले जाए, आप लेने देंगे क्या? कोई चीज उसको हाथ लगाने देंगे क्या? ये लोग चारों तरफ आओ आओ, स्वागत है, ले जाओ। हम क्यों संभाले, बेकार में हमारा टाइम जाता है, ले जाओ। भाइयों बहनों, ये बांटने वाले, देने वाले, बर्बाद करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को तबाह करके रखा हुआ है। इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करीब 6.5 लाख से ज्यादा लोग अकेले मणिपुर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज है। बेरोजगार के लिए तड़प रहे हैं। भाइयों बहनों, 6.5 लाख नौजवानों में से कितने लोगों को रोजगार मिला है मालूम है? पता है किसी को मणिपुर के भाइयों बहनों? आपके मणिपुर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिखे गए हैं। कितनों को नौकरी मिली है मालूम है? सिर्फ 100 लोगों को, 100 लोगों। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, आप क्या हाल बना के गए। ये नौजवानों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग? The boys and girls have to go other parts of India to get jobs. The women of Manipur are brave and hardworking, but nothing has been done for their empowerment or development. IT field could be a great provider of employment in this region. With young and bright boys and girls, Manipur can do wonders in the field of IT sector. भाइयों बहनों, यहां के लोग अंग्रेजी जानते हैं, यहां के नौजवान भली भांति टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये आईटी का हब क्यों नहीं बन सकता है। मैं कल हिंदुस्तान के जो आईटी वर्ल्ड के लोग हैं, उनके साथ एक सेमिनार में मैं भाषण कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि अमेरिका आउटसोर्स करे, काम बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, पुणे में होता है, चेन्नई में होता है। मैंने कहा क्या जरूरत है भाई कि अमेरिका का आउटसोर्स किया हुआ काम या दुनिया के किसी देश का आउटसोर्स किया हुआ काम इन बड़े बड़े शहरों में करना पड़े, सारे देश के नौजवानों को रोजगार के लिए वहां जाना पड़े। क्या ये आउटसोर्स का काम छोटे छोटे शहरों में नहीं हो सकता है? ये रिमोट एरिया नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में नहीं हो सकता है? क्या इम्फाल में वो काम खड़ा नहीं हो सकता है? यही मणिपुर के अंदर यहां के नौजवानों को इस प्रकार के यूनिट प्रस्तावित करके रोजगार नहीं दिया जा सकता है? और अगर यहां देंगे तो इतना कम खर्चे में होगा कि कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा। यहां के नौजवान को
अपना गांव घर छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें समझ नहीं आता है कि लोगों को रोजगार देने के तरीके क्या होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं यहां आया, मुझे सब लोग बता रहे थे साहब यहां सामने ही नेशनल हाईवे 53 कितने साल हो गए लटका पड़ा है, नहीं हो रहा है। इसको पूरा करना है कि नहीं करना है भैया? नेशनल हाईवे 53 का काम होना चाहिए। जरा बोलो तो होना चाहिए, होना चाहिए। ये लोग कर पाएंगे क्या? ये लोग कर पाएंगे? मुझे काम देने की तैयारी है, मुझे काम देने की तैयारी है। मैं करके दूंगा भाइयों बहनों, आप हमें मौका दीजिए। ऐसे क्या रुपये बर्बाद करते हैं क्या? भाइयों बहनों, कोई काम का महत्व समझते नहीं है लोग। वो अपनी राजनीति, पैसे कमाना, इन्हीं कारोबार से ऊपर नहीं उठते और उसी के कारण भाइयों बहनों हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सिमिलरली, with the spirit of sports, Manipur can be made the powerhouse of sports in the country. There is natural talent among its people in hockey, football, boxing and archery. They need to be encouraged and shaped in these sports. It is India's pride that Manipur is the origin of the sports of polo. As in 1854, the people of Manipur introduced this sport to the British. Infrastructure of Manipur is crumbling. If BJP comes to power, we will immediately work on the two important national highways. They are Silchar-Imphal Road and Dimapur-Imphal Road. Today, they are in bad shape. Coming from Gujarat, I will be particularly interested in Saurashtra-Silchar connectivity. भाइयों बहनों, गुजरात भी कृष्ण भक्ति में डूबा रहता है, वहां भी रासलीला होती है। मणिपुर भी कृष्ण भक्ति में डूब रहता है, मणिपुर की रासलीला भी फेमस होती है। हमारा आपका नाता कुछ न कुछ तो है। और वैसे भी भगवान कृष्ण की शादी नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, रुक्मिणी नॉर्थ ईस्ट की थी और कृष्ण गुजरात में रहते थे। तो हमारा तो आपका नाता बड़ा महत्वपूर्ण है। This is also important if we have to bring this northeastern sector at par with western sector of the country. Similarly, the Silchar-Morelia-Myanmar road is also an important part of the South Asian Trans-Highway. We have to work on this project on a fast-track basis. भाइयों बहनों, in Manipur and in North East at large, we have to involve the people in nation building, build roads to connect them to the national mainstream. We have to build schools and hospitals to give them the taste of development. We have to secure the borders to secure you and the nation. We have to bring industries to process what your region already has. We have to harness the manpower to give further glow to the culture, sports and technology in the country. If we do this,
no one will need to worry about the Northeast. Peace, prosperity, and stability will then be a natural outcome. I assure you that we will work on these lines. I assure you that our intention is to see that Northeast becomes an equally developed part of our country. It is our desire that you participate equally in the affairs of our country. भाइयों बहनों, विकास की यात्रा में हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। आपका साथ भी चाहिए, आपका विकास भी चाहिए। भाइयों बहनों, पीस एंड प्रोग्रेस गो टुगेदर। हमें शांति भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, और हम सब मिलकर के अगर इन बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो भाइयों बहनों, मैं जरूर मानता हूं कि हम एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे। भाइयों बहनों, हम सबको संकल्प करना है, देश को तबाह करने वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए, देश को लूटने वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए, भाई भाई को लड़ाने वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार इस देश से बंद हो, वो राजनीति बंद हो, उसके लिए संकल्प होना चाहिए। गरीब को 2 टाइम खाना मिले, नौजवान को रोजगार मिले, रहने को घर मिले, ऐसे समाज की रचना क्यों नहीं हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने आज जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, 2014 के चुनाव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है भैया, ये मुसीबतों के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 100 दिन इस देश को सहन करना है। 100 दिन के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बुरे दिन जाने वाले हैं, भारत के ऊपर से बर्बादी का मंजर हटने वाला है। हम लोगों को अच्छे भविष्य की कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर के ये अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, ये अष्टलक्ष्मी समग्र भारत के भाग्य को बदलने का एक सपना लेकर के आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मयाम पुनवकुवो याग चरी भागत चरी भागत चरी भागत चरी